Students, I hope you all are safe. Students, today we will do article writing. Yes, article writing. Students, it is very important to write an article, and it is very important for the students of 9th to 12th class. It's of 10 marks, students, and before writing an article, you should know what is it, what is the meaning of article. An article is a non-fictional writing, students. ये real और true instances based होती है, non-fictional होती है, imaginary नहीं होती. और it describes any particular incident. किसी particular incident का भी जिक्र कर सकते हैं. Discussions हैं, theme है और social concern. कोई भी social concern, social problems, global warming you can say, dowry system you can say, corruption, many more topics are there, health issues, environmental problems, etc. etc. So student, listen to me carefully. Today I am going to tell you very important tips to write an article impressively and beautifully. There are different parts of an article I'm going to share with you, students. First important task is to write a title. Sometimes title is given or sometimes title is not given. You have to make your own one. So it is very important to make a sensible, thoughtful title or impressive or catchy title so that your article should look impressive, presentable. So the entire impression depends on the title. Your title should be impressive and tells about the contents or the problem of the topic. And students, after writing the title, we have to add writer's or author's name in second line. We can use it by writing by and then writer's name, or if there is no writer name, suppose no writer name is given, then we have to use XYZ or ABC in place of the writer. And the third important part of an article is body. Yes, body of an article. And there are three important points for the same. The first is introduction. Students, introduction is very important. Before starting or before having a start of an article, we have to define it properly. The article's meaning should be clear in first stanza. If not, sometimes there are no definition can be written on the topics. Suppose some topics are different, we can't write definition, so we can start the article with a quotation, famous quotation, or another way is we can use article by using past instance or by comparing past instance. For example, gone are the days when children, students respected their elders. Now trend have changed. Nobody would like to respect their elders. Suppose in changing trends article, you may write or start, have a good start of this. Otherwise, definition style is very good. Maximum articles. You by telling the meaning of an article, you can start it. But in some articles, you may start it with quotations or sayings, or by comparing past and present. The other way I told you, gone are the days. You can compare past with present and then start giving your views. And student, keep in mind, the language should be formal, not informal words. आपको formal language use करनी है, जो हम books में use करते हैं. Informal words का कम से कम use करना है. Article में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है. And student, the most important task is, while attempting an article, you have to read the question carefully. Because without knowing the contents or without knowing the meaning of
an article, you are not able to write it properly. And student, what we have to do? Read the question carefully. बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है question को. Then write ideas in your mind or in rough paper or rough sheets if you are going to write something. Or in examination hall, you have to develop some ideas in your mind, or you have to make a mind map for the same. Second, use expressions. You have to use good expression, because teachers or mentors usually like different, innovative, impressive ideas. They don't like common ones and general ideas. So use some innovative and different expressions. And add quotations. Quotations or sayings are very important. You have to use famous quotes, quotations or saying to make your article remarkable, excellent, impressive. And word limit, you have to keep in mind, and you should not forget 120 words to 150 words. Do not prescribe the given word limit. You have not to exceed the prescribed word limit, 120 to 150 words. And now student, I'll tell you, and we discussed a question how to write an article. Out of this question, newspaper report, more cases of road rage. What is the meaning of road rage? Yes, you should know the meaning of road. You are familiar with the word road. And what is rage? Gussa. रोड पे गुस्सा कैसे आता है? अ रोड सेफ्टी सर्वे, और रोड सेफ्टी सर्वे के अकॉर्डिंग जो रोड पे जो गुस्सा है, ये आपने इस पे आर्टिकल लिखना है 120 वर्ड्स का, और इसमें आपने ये बताना है कि मोस्ट प्रॉब्ली वर्बल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं रास्ते में, और हर कोई जल्दबाजी में जाना चाहता है, इसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं, वर्बल इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की, ओवरटेक करते हैं गाड़ियों की, थ्रेटनिंग्स देते हैं. तो जो रोड में एक दूसरे लोगों का, ड्राइवर्स का या व्हीकल ऑक्यूपेंट्स का मतलब गर्मा गर्मी हो जानी, आपस में विचारों में मतभेद हो जाना, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, और काफ़ी मतलब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं रोड्स के ऊपर. तो ये सब वजह रोड रेस की है. तो मैक्सिमम आपने ये सब लिखना है इसमें. एक्सप्रेस कंसर्न एज द अलार्मिंग. येस, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत आजकल बढ़ चुकी है. नंबर ऑफ केसेस हम डेली देखते हैं, तो आपने इसके लिए एक प्रॉपर डेटा भी बताना है कि लास्ट मंथ कितना था या पिछले साल कितना था. तो ऐसे आपका आर्टिकल जो है वो बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही एप्रोप्रिएट लगता है जब आप कोई डेटा शो करते हैं उसमें. फिर आपने कुछ लिस्ट बनानी है, और कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, और ये इस मीनिंग्स के कॉजेज़ क्या है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और क्या क्या रीजंस हैं, इसको प्रॉपर्ली आपने बताना है. उसके बाद हम लास्ट में सजेशंस देते हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट्स में सजेशंस देते हैं, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छे सजेशंस देते हैं जो ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें. एंड स्टूडेंट, how to make mind map in your mind. Firstly, what is road rage? After writing the title and writer's name, in first introduction or introductory para, you have to write the meaning of road rage. What is road rage? Road rage क्या होता है? In 3-4 lines. After writing it, ये कितना बढ़ावा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कौन बढ़ा रहा है इसको, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, और इंडिया में इसके केसेस. फिर आपने सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में लोगों के व्यू, कुछ आपके लाइव एग्जाम्पल्स देते हुए, कुछ न्यूज़पेपर या उसके नाम देकर उसके बारे में बताते हुए, एक प्रॉपर रेलेवेंट डेटा देते हुए, उसको बताते हुए आपने एक्सप्रेस करना है. उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपने कंक्लूडिंग पॉइंट्स लिखने हैं अपने सजेशंस के साथ. इस तरीके से और भी चीज़ें आप लिख सकते हो. हरी जैसे हमने यूज़ किया है कि मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीज़न लिखना है कि हरी है, जैसे जल्दबाजी है, हरी स्पॉयल्स करी, कि ये ज़्यादातर इंसिडेंट हरी में होते हैं, हर कोई जल्दी में होता
होता है तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता, इनटॉलरेंस के करके होते हैं। और ट्रैफिक जैम्स भी हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम से जो है रोड्स की सिचुएशन पुअर होती है, लोग हर कोई जल्दी जाना चाहता है, फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, एलिगेट करते हैं और आपस में झगड़ा हो जाता है, तो जिससे काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और सजेशंस में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें कर्टियस होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए और वी हैव टू अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। और हमें जो है वो रिलैक्स रहना चाहिए, काम कूल रहना चाहिए। हमें भी किसी भी तरीके का ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे खुद को भी परेशानी हो और दूसरे को भी परेशानी हो। सो एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्यूअर्ड और सिटीज़न की जो एक इमेज और एक जो भूमिका है वो हमें निभानी चाहिए। तो इस तरह से लाइंस आप लिख सकते हो कि एज अ सिटीज़न, एज एन इंडियन, कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एज अ स्ट्यूअर्ड, एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री। तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे ये सब अवॉइड किया जा सके। एंड नाउ स्टूडेंट्स लुक, सबसे पहले हमने टाइटल दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। अगर मैंने द एज ऑफ रोड रेज दिया है तो आप ये भी लिख सकते हो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स या इल इफेक्ट्स ऑफ रोड रेज। इस तरह से कई सारे टाइटल्स बना सकते हो। फिर जो आपको नाम दिया हुआ है, सपोज हमें दिया हुआ है रुचिका गुप्ता नाम दिया हुआ है, हमने वो नाम दे दिया। उसके अलावा यदि कोई नाम नहीं दिया हुआ तो हम XYZ या ABC लिख सकते हैं इस नाम के अलावा। उसके बाद स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया एक दो लाइनें छोड़कर कि रोड रेज, उसका मीनिंग बताते हुए कि इसमें क्या क्या होता है। इंक्लूड्स रूड एक्शंस, बिहेवियर है, वर्बल इंसल्ट है, फिजिकल थ्रेट है, एक दूसरे को धमकी देनी, गाली गलौज करना, डेंजरस ड्राइविंग मेथड्स, मेथडोलॉजीज यूज़ करना, स्ट्रैटेजीज यूज़ करना, एक दूसरे को फिजिकल तरीके से हर्ट करने की कोशिश करना, लेडीज़ के साथ इल ट्रीटमेंट करना और जिसे कहते हैं बहसमबाजी करनी, लड़ाई झगड़ा करना। तो इस तरह की बातें हमें ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसका मीनिंग बताते हुए हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। इसके लिए हम कोई कोट भी लिख सकते हैं इस पैराग्राफ के बाद, जैसे स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स इनिशियली बट किल्स फाइनली, या फिर इट्स बेटर टू बी लेट देन मिस्टर लेट। वो पर हमें सेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट, मतलब बहुत ही एक प्रॉपर तरीके और सिस्टमैटिक और सीक्वेंस में हमें इन सब का यूज़ करना है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि रोड रेज का मैक्सिमम किस तरह से फैला हुआ है और ये क्या कितने कॉमन केसेस आ रहे हैं। जैसे कि रोड रेज कैन बी, वी कैन से कैन बी फैटल, इससे डेथ भी हो सकती है। जैसे आए दिन जो लोगों की मौत होती है वो रोड रेज करके, दो ड्राइवर्स के बीच में झगड़ा हो गया, मौत हो गई, ओवरटेकिंग हो गई, या जो भी है इस तरीके से। और उसमें और क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं। फिर आप एक आध लाइव एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पिछले मंथ या लास्ट मंथ जो है वो 2000 लोग रोड रेज का विक्टिमाइज हुए, शिकार हुए, या कितने एक्सीडेंट्स हुए। ये आप एक प्रेजेंट डेटा दे सकते हो इसको मोर इफेक्टिव और मोर लाइवली और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आप कुछ एक जनरल इश्यूज लिखेंगे कि हमारे लगभग क्या होता है, हर कोई जल्दी में होता है, हर किसी को अपने घर या काम पे जाने की जल्दी होती है, हर कोई सही टाइम पे पहुंचना चाहता है, तो सबको गुस्सा आता है कि जब सब, और कई बार जो है वो रोड्स अगर ख़राब हैं और अगर रोड्स नैरो हैं तो उसकी वजह से अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो लोग एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं। तो इसके सजेशंस में हम फिर लास्ट पैराग्राफ में ये देंगे कि लोगों को कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए और लोगों को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए रोड के ऊपर। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री दे हैव टू बी इन देयर लिमिट्स, कि उनको ये सोचना चाहिए कि दे आर प्रीशियस फॉर देयर फैमिली एंड दे हैव टू रीच होम एंड समबडी इज वेटिंग फॉर them at home. They should not cross their limits or involve in the trivials or various disputes and other things of the roads. तो उनको cool headedness जो है वो maintain करनी बहुत ज़रूरी है। आप suggestions कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन मिलते जुलते कि किस तरीके से लोगों को cool और calm रहना है। और उसके बाद कि लोगों को अगर किसी की गाड़ी टूट गई है, कोई नुकसान हो गया है, तो उस हिसाब से मार काट, लड़ाई झगड़ा या इतना ज़्यादा वो ना कर दो कि कुछ और मुसीबत में पड़ जाओ। सपोज़ इतनी लड़ाई हो जाए कि आप किसी का खून ही कर दो, तो उससे आप ही मुश्किल में पड़ोगे। तो इससे क्या है कि हमें, अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हम उसे क्लेम कर सकते हैं बाद में, अगर हमारी गाड़ी ख़राब हुई है। अगर प्रेम प्यार से आराम से कोई बात हो सकती है तो उसके लिए हमें झगड़ा करना, वर्बल इंसल्ट करना एक दूसरे की और गाली गलौच और ये सब उस पर आना एक बहुत ख़राब बात है। And by concluding points, you may end this. I hope you understood, students, and thank you so much.
And that's all for now, and catch you very soon